لوگوں کا روزگار بچایا جائے. اگر آپ ایک بزنس مین ہیں اور اگر آپ اگلے 3 مہینے میں اپنی روزگار کو برقرار رکھتے ہیں, کسی ورکر کو لے آف نہیں کرتے, تو آپ اپنے 3 مہینے کا سیلری اور ویج کا جو ایکسپینس ہے وہ اسٹیٹ بینک کی اس اسکیم کے تحت 5% قرضے پہ وہ آپ لے سکتے ہیں. مزدور طبقے کے لیے اسٹیٹ بینک کا احسان اقدام. 3 ماہ تک ورکرز کا روزگار بچانے کے لیے نئی اسکیم. گورنر اسٹیٹ بینک کا صنعت کاروں اور تاجروں کو بڑی رعایت دینے کا اعلان. آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں رضا واقر نے بتایا ورکرز کا روزگار برقرار رکھنے والوں کو 5% پر قرض ملے گا. ایکٹیو ٹیکس پیئرز کو 5 کے بجائے 4% پر قرض ملے گا. ادائیگی کے لیے 2.5 سال, پہلے 6 ماہ میں پرنسپل قسط کی چھوٹ. اسکیم میں توسیع کا بھی دورہ کیا, کہا جو کچھ بھی کر سکے کریں گے. دنیا کو کورونا کا چیلنج درپیش ہے, ہم اچھی حکمت عملی سے صورتحال سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے, اسپتالوں میں کیا سہولیات موجود ہیں. چیف جسٹس گلزار احمد نے کورونا سے نمٹنے کے لیے ناکافی انتظامات پر از خود نوٹس لے لیا. سماعت 13 اپریل کو ہوگی. کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لاک ڈاؤن جاری. ملک بھر میں مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی رہی, مگر عوام غیر سنجیدہ. اسلام آباد اور پشاور میں نماز جمعہ مساجد میں ادا کی گئی. کراچی غلط ہے کہ کورونا کم عمر لوگوں پر اثر نہیں کرتا. پاکستان میں 70% متاثرہ افراد کی عمر 50 سال سے کم ہے. معاون خصوصی ظفر مرزا کی میڈیا بریفنگ, کہا خدا کا شکر ہے کیسز تخمینوں سے کم ہیں, مگر آنے والے دن غیر یقینی ہیں. بیرونی ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے حکومت پرعزم. معید یوسف کہتے ہیں آئندہ ہفتے تک ملک بھر کے ایئرپورٹس کھول دیے جائیں گے. 2000 پاکستانی اگلے ہفتے تک واپس آ سکیں گے. احساس ایمرجنسی کیش پروگرام, سماجی فاصلے کی اصطلاح بے معنی. دوسرے دن بھی احتیاطی تدابیر نظر انداز, لوگ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے. ملتان کے علاقے قاسم پور کالونی میں بھگدڑ, امداد لینے آئی خاتون جاں بحق, کئی زخمی. بھوانہ, لاڑکانہ, بدین سمیت مختلف جگہوں پر بھی بد نظمی, انتظامیہ اور متعلقہ ادارے بے بس. چینی برآمد ہوئی یا بیرون ملک اسمگل کی گئی, آٹے اور چینی بحران کے اصل محرکات تھے کیا. وزیر اعظم نے انکوائری کمیشن کو مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کی ہدایت کر دی. کمیشن کے سربراہ واضح جان تحقیقات شروع کر دی. وزیر اعظم کو 25 اپریل تک فورنسک آڈٹ رپورٹ پیش کی جائے گی. میری ملز کی آڈٹ پر مجھے کوئی اعتراض نہیں. رہنما تحریک انصاف جہانگیر ترین کا رد عمل, کہا کمیشن کو بتانا ہوگا صرف 9 شوگرز ملز کو آڈٹ کے لیے سلیکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے. سابق سیکرٹری خوراک نسیم صادق کا بھی انکوائری کمیٹی پر جانبداری کا الزام. چیف سیکرٹری کو خط لکھ دیا, انکشاف کیا. گندم خریداری مہم کے بعد متعدد اسکینڈلز کا علم ہوا, تحقیقات شروع کی تو بتایا گیا. وزیر اعظم کو معاملے پر مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. چینی بحران کیس کے حوالے سے گیند ہمارے کورٹ میں ہے. معاملے کی لوکیشن تیزی سے بدلتی جا رہی ہے. شیخ رشید کی پروگرام روبرو میں گفتگو, کہا شوگر مافیا خود گنے کا بحران پیدا کرتا ہے اور مزدوروں سے احتجاج کراتا ہے. اسد عمر اور رزاق داؤد نے زر مبادلہ کی وجہ سے ایکسپورٹ کی اجازت دی. شہباز شریف کی غلط فہمی کچھ دنوں میں دور ہو جائے گی. لندن سے واپسی کے بعد پہلی بار شہباز شریف کا اپنے حلقے کا دورہ. لاہور میں خواجہ برادران سے ملاقات, کورونا وائرس کی صورتحال اور حلقے کے عوام کے مسائل پر تبادلہ خیال. اپوزیشن لیڈر نے نون لیگی اراکین اسمبلی کو اپنے علاقوں میں راشن کی تقسیم کی ہدایت کر دی. پنجاب حکومت کا صحافیوں کے لیے پیکج کا اعلان. کورونا سے جاں بحق صحافی کے اہل خانہ کو 10 لاکھ جبکہ بیوہ کو تا حیات 10,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے. مثبت کردار پر 10 صحافیوں کو ایوارڈ بھی ملے گا. میڈیا ہاؤسز کو بھی پنجاب میں اشتہارات پر ٹیکس چھوٹ ملے گی. اشتہارات کے بقایا جات کی ادائیگی بھی جلد ہوگی. اور سونے کی قیمت پہ پر لگ گئے. 10 گرام سونا 858 روپے مہنگا ہو کر 83,848 روپے کا ہو گیا.
फी तोला सोने की कीमत में भी 1000 रुपए का इजाफा। मुल्क में फी तोला सोना 97,800 रुपए का हो गया। का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। इस अहम खबर के बारे में मजीद तफसीलात हासिल करेंगे इस्लामाबाद से आज न्यूज के नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद अकबर, बताइएगा कि मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल जी, ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों के मुसद्दका इतलात पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन शुमाली वजीरिस्तान के इलाके जाकिर फेल में किया गया। ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही शहीद हुए हैं। शोहदा में 23 साल सिपाही मोहम्मद शाह का ताल्लुक DI खां के नवाह से था, वो शादीशुदा थे। इसी तरह से 31 साल सिपाही मोहम्मद शाह शहीद का ताल्लुक एबटाबाद के नवाही गाँव से था। उनकी पसमंदगार में बेवा और 3 बच्चे छोड़ी हैं। जी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। बहुत शुक्रिया नवीद अकबर। और अभी आपको बताएंगे कि कोरोना के 22 लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल के पेश नजर लोगों के रोजगार बचाने के लिए स्टेट बैंक ने सनतकारों और ताजरों को बड़ी रियायत देने का ऐलान कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं कि 3 माह तक वर्कर्स के रोजगार को बरकरार रखने वालों को स्टेट बैंक 5% पर कर्जा देगा। एक्टिव टैक्स पेयर्स को 5 के बजाय 4% पर कर्जा मिलेगा और अदायगी 2.5 साल में होगी, जबकि पहले 6 माह में प्रिंसिपल की कोई किस्त नहीं देना पड़ेगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। कोरोना के 22 लॉकडाउन से लोगों का रोजगार मुतासर होने का खदशा। स्टेट बैंक ने लोगों को सहारा देने के लिए आसान कर्जा स्कीम मुतारिफ करा दी। 3 माह तक वर्कर्स को ना निकालने वालों को 5% शरह सूद पर कर्जा मिलेगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, इस स्कीम से लोगों का रोजगार बचेगा। इसका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों का रोजगार बचाया जाए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अगर आप अगले 3 महीने में अपनी रोजगार को बरकरार रखते हैं, किसी वर्कर को ले ऑफ नहीं करते, तो आप अपने 3 महीने का सैलरी और वेज का जो एक्सपेंस है वो स्टेट बैंक की इस स्कीम के तहत 5% कर्जे पे वो आप ले सकते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, पहले 6 माह में प्रिंसिपल की कोई किस्त भी नहीं देना पड़ेगी। टैक्स पेयर्स को 5 के बजाय 4% पर कर्जा मिलेगा। आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे हैं तो फिर इस पे आपको 1% का डिस्काउंट होगा और आपको मैक्सिमम रेट 4% पड़ेगा। शर्त सिर्फ ये है कि आपके जो वर्कर्स हैं उनको आपने 3 महीने के लिए उनका रोजगार बरकरार रखना है। रजा बाकर ने बताया, आसान कर्जा स्कीम का सर्कुलर जारी कर दिया गया है। ताजिर हजरात 2 रोज बाद बैंक जा सकते हैं। इसका सर्कुलर इशू हो गया है। 2 दिन में हम बैंक्स को लिमिट्स नोटिफाई कर देंगे कि हर बैंक इस स्कीम में कितना चला सकता है और जो बोरोवर्स हैं वो फौरन ही इन 2 दिनों के बाद बैंक के पास जा सकते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि मरकजी बैंक हर हफ्ते बैंकों को मॉनिटर करेगा। स्कीम में तौसी भी की जा सकती है। और अभी आपको बताएं, चीनी बरामद हुई या स्मगलिंग के जरिए मुल्क से बाहर गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहकीकाती कमीशन को फॉरेंसिक ऑडिट की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में बाज़ वज़रा ने 70% चीनी स्मगल होने की निशानदही की थी। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया ने तहकीकात शुरू कर दी। फॉरेंसिक ऑडिट से पता चलेगा कि कितनी चीनी मिल से निकली और कितनी बरामद हुई। साबिक सेक्रेटरी खुराक नसीम सादिक ने आटा स्कैंडल पर चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। खत में उन्होंने इंक्वायरी कमेटी पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि गंदम खरीदारी मुहिम के बाद मुतादिद स्कैंडल्स का इल्म हुआ, जिन पर तहकीकात शुरू की गई, उनका तबादला कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मामले पर मिसगाइड किया जा रहा है। साबिक सेक्रेटरी खुराक नसीम सादिक ने आटा स्कैंडल पर चीफ सेक्रेटरी को 38 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली खत लिख दिया, जिसमें उन्होंने अपने पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। नसीम सादिक ने लिखा है कि जब उन्होंने ओहदे का चार्ज संभाला तो गंदम की खरीदारी शुरू हो चुकी थी। गंदम की खरीदारी मुहिम और आटे की शार्टेज का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। नसीम सादिक ने इल्जाम आयद किया कि आटा स्कैंडल पर बनाई गई कमेटी जानिबदार है। इंक्वायरी कमेटी के 2 मेंबरान DG खान में घर अलाट करने के लिए उन पर प्रेशर डालते रहे हैं। नसीम सादिक
सादिक ने कहा कि फीड मिलों को गंदम जारी करने का फैसला भी उनके चार्ज संभालने से पहले हुआ, जिसके दस्तावेज शवाहिद मौजूद हैं। हकीकत ये है कि गंदम की एक्सपोर्ट, रिबेट और सब्सिडी में करप्शन हुई है। तहकीकात करने पर इनका तबादला कर दिया गया। साबिक वजीर खुराक ने खत में लिखा है कि यह सब इसलिए किया गया कि उनकी नौकरी सिविल सर्विस का असासा है और वो ईमानदारी से अपने फराइज सरअंजाम दे रहे थे। शेख रशीद कहते हैं कि चीनी बहरान केस के हवाले से 25 तारीख को गेंद हमारी डी में है। इस मामले की तेजी से लोकेशन बदलती जा रही है। शुगर माफिया खुद गन्ने का बहरान पैदा करता है और मजदूरों से एहतजाज कराता है। असद उमर और रजाक दाऊद ने ज़र मुबादला की वजह से एक्सपोर्ट की इजाजत दी। वज़ीर आज़म ने भी किसान का ख्याल करते हुए इजाजत दी। शहबाज शरीफ की गलतफहमी कुछ दिनों में दूर हो जाएगी। शेख रशीद आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू कर रहे थे। 25 तारीख को अब गेंद जो है वो हमारी डी में। जिस तेजी के साथ लोकेशन बदलती जा रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये असद उमर ने सब्सिडी नहीं दी। ये खुद गन्ने का बहरान पैदा करते हैं, खुद मजदूरों को बसों पे चढ़ाते हैं, खुद उनको किराए देते हैं, खुद उनसे जुलूस मुजाहरे कराते हैं। एक्सपोर्ट की इजाज़त असद उमर ने ये सोचा और रज़ाक दाऊद ने ये केस प्लीड किया कि हमें फॉरेन एक्सचेंज की बड़ी ज़रूरत है। नवाज शरीफ ने तो तलब होना है, उसको बड़ी जो गलतफहमी थी उसकी दूर होने जा रही है थोड़े दिनों में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का शुगर इंक्वायरी कमीशन से सवाल। ट्वीट किया कि मुझे मेरी मिल्स के ऑडिट पर कोई एतराज नहीं, लेकिन कमीशन को बताना होगा कि सिर्फ 9 शुगर मिल्स का ऑडिट के लिए सिलेक्ट करने का तरीकाकार क्या है। क्या कमीशन सिर्फ 9 मिल्स का ऑडिट करके पाकिस्तान की तमाम शुगर मिल्स की हकीकत तक पहुंच जाएगा? जहांगीर तरीन ने लिखा कि मैंने कुछ छुपाया है, ना मुझे कुछ छुपाने की जरूरत है। और अब जिक्र करते हैं कोरोना के वायरस के हवाले से खबरें इसमें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 66 अफराद जाँ बहक, 24 घंटे में 284 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 4695 तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा पंजाब में 2287 अफराद मुहलिक वायरस का शिकार बने, जबकि सिंध में मुतासरीन की तादाद 1214 हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 620 और बलूचिस्तान में 219 अफराद जेर इलाज हैं। अब तक 727 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में बनारस चौक के करीब पाबंदी के बावजूद नमाज जुम्मा अदा की गई। नमाज जुम्मा का इज्तिमा रुकवाने पर खातून SHO को मुबैना धक्कमपेल का सामना करना पड़ा, जिससे वो मामूली जख्मी हो गई। मकामी अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली। के तहत दूसरे रोज भी हजारों अफराद ने मराकज का रुख किया। पंजाब के शहर भवाना में शदीद बदनज़मी देखने में आई। लालखाना में इंतजामिया खवातीन के हुजूम पर काबू पाने में नाकाम नजर आई। बदीर में भी अवाम से हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद न करवाया जा सका। कराची में भी मुस्तहिक खानदानों के लिए नकद इमदाद की फरहमी जारी है, जहां हिफाजती इंतजामात के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। मामले खुसूसी सानिया निश्तर ने इमदादी रकूम हासिल करने के लिए नई वीडियो जारी कर दी। हुकूमत पाकिस्तान के असास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए की इमरजेंसी कैश की इमदाद लेना चाहते हैं तो फौरन हमें 8171 यानी कि 8171 पर अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर SMS करें। इमदादी मराकज पर हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी से इंतजामिया और मुताल्लिका इदारे बेबस नजर आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना वायरस से दुनिया भर को चैलेंज का सामना है। वफाकी हुकूमत तमाम सूबों की भरपूर मावनत कर रही है। अच्छी हिकमत अमली से कोरोना से बच सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पेशावर में हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और एहसास सेल पॉइंट का दौरा किया। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से निपटने के लिए इकदाम कितने मौसर? वजीर आज़म इमरान खान ने हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आज़म को सूबाई हुकूमत के इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया सूबे भर में 583 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिनकी तादाद को मजीद बढ़ाया जा रहा है। इमरजेंसी के तहत 638 रेगुलर और 1299 कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स भर्ती किए गए हैं। सरकारी सतह पर सूबे में 400 रैपिड रिस्पांस टीमें काम कर रही हैं। डॉक्टर से गुफ्तगू में वजीर आज़म ने कहा, कोरोना से दुनिया भर को चैलेंज का सामना है। अच्छी हिकमत अमली से कोरोना की सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी चीज की भी जो भी हम कर सकते हैं ना, इंशाल्लाह आपके लिए हम करें। जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं ऑब्वियसली ये बढ़ेगा अभी। इस वक्त हमारी गवर्नमेंट की सिर्फ एक चीज है कि हमने कैसे अपनी मेडिकल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है
और दूसरा कैसे हमने लोगों को, आवाम को ये जो एक बैलेंस भी करना है, एक तरफ फैल भी रही है, दूसरी तरफ लोग भूख से ना मरे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर में एहसास सेल पॉइंट का दौरा भी किया, जहां मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। कोरोना वायरस से निमटने के लिए क्या इक़दाम उठाए गए, अस्पतालों में क्या सहूलियात हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कोरोना से निमटने के लिए नाकाफी सहूलियात पर पहला खुद नोटिस ले लिया। समाअत 13 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं, अस्पतालों में क्या सहूलियात दी गई हैं। चीफ जस्टिस